सो बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हमने मॉडल स्टार्ट किया था इन द एंड एंड वी स्पोक अबाउट अ फ्यू थिंग्स. इकोनॉमी के अंदर 4 sector economy is the maximum you can have. ठीक है, and you can have at least कम से कम 2 sector होना लाजिम है. ठीक है, maximum up to 4, कम से कम up to 2. So basically what you have is, C, households is one sector, I, business investment is the second sector, government is the third sector, and X minus M is the fourth sector. अभी मैंने minus M इसलिए ऐड किया है because I am assuming this consumption to have imported goods also. लेकिन अगर मैं यहाँ पे CD लिख देता हूँ meaning domestic consumption है तो that means इसमें कोई import है ही नहीं. ठीक है, that's how you can make a difference. But for now, let me work with X minus M also. So this is 2 sector economy without government or international trade. So it's a closed economy. Without this, you have a 3 sector economy with government. Without this, you have 3 sector open economy without government. And this becomes your 4 sector economy. This is what we spoke about last. Minimum, you need to have C plus I. इन दो के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता. C and G भी really does not exist. एक टर्मिनोलॉजी हमने ऊपर मेंशन की है, it's endogenous, ENDO. यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन में मिसिंग है, so let me write it over here. Endogenous, and this one is exogenous. ठीक है, EXO के साथ and GENOUS. इन वेरिएबल्स की बात हो रही है. एंडोजेनस वर्सेस एक्सोजेनस, व्हाट वी सेड वाज कि क्या इनकम के साथ विल इट चेंज और नॉट. एंडोजेनस मतलब इंड्यूस्ड, दैट्स अनदर नेम, आई विल बी यूजिंग इंड्यूस्ड मोर ऑफन. तो इंड्यूस्ड वेरिएबल वो होता है जो इनकम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल, यू आर सेइंग कंजम्पशन का एक हिस्सा इंड्यूस्ड है कि जितनी जितनी मेरी इनकम्स बढ़ेगी मेरी कंजम्पशन भी उसके साथ चेंज होगी. ठीक है, लेकिन साथ ही में एक ऑटोनमस वेरिएबल भी है, एक्सोजेनस वेरिएबल. ऑटोनमस वेरिएबल ये है कि वो इनकम से इंडिपेंडेंट है. वेदर इनकम बढ़े या ना बढ़े, आई हैव टू स्पेंड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी. फॉर एग्जांपल, कंजम्पशन का भी एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनमस. इवन इफ माय इनकम इज जीरो, आई हैव टू स्पेंड समथिंग टू लिव और टू सर्वाइव. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट मोर अबाउट दैट लेटर ऑन. फिर एक इस मॉडल के अंदर 45 डिग्री की एक लाइन बनती है, बेसिकली इनकम लाइन बनती है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है. ऑन द y x एक्सिस यू हैव द रियल इनकम, y के नोटेशन के साथ वी आर गोइंग टू वर्क, और y एक्सिस के ऊपर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. डिपेंडिंग ऑन कितने सेक्टर है, आई एम गोइंग टू मेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दैट. ये 45 डिग्री लाइन बता रही है कि अगर 500 की इनकम है तो 500 का एक्सपेंडिचर है, 1000 की इनकम है तो 1000 का एक्सपेंडिचर है, अगर 1500 की इनकम है तो 1500 का एक्सपेंडिचर है, and so on so forth. This line is important for comparison purpose. You're going to see it a little later when we're going to work with the model. So let me start off with the first element of our entire thing, which is consumption. Let me take this one down. It's all there in your income, in your notes. So I'm going to make a table, और उस table के अंदर जो मेरे पास सबसे पहली information है, that is YD. You need to know what YD stands for. It stands for disposable income. Disposable income क्या होती है? The income after tax available for you to spend on goods and services. ठीक है? That's what disposable income means. Second is consumption. How much consumption am I doing?
ये मेरी planned consumption है, that this is how much money I'm planning to spend. Imagine if I have an income of 0, I am saying I have to spend $500 on certain goods and services to survive, even though if my income is not there. How can I do consumption of 500 if my income is 0? Probably it's coming from savings. What if my income rises to, let's say, 500? So I'm saying my consumption increases to 750. Still 250 कहीं और से आ रहा है. I'll assume savings में से आ रहा है. If my income is 1000, I'm assuming मेरी consumption भी 1000 है. So I'm pretty much spending all of it. How much will be my savings? Probably nothing. ठीक है? How about if it's 1500? Am I spending all of it? I'm saying no. I'm spending about this much of that. ठीक हो गया? What if my income is 2000? How much am I spending then? Let's say my numbers are 1500. 500 goes in the saving. And lastly, if I was earning an income of 2500, let's say the number of consumption I'm getting is 750. It's a very linear thing that's going on over here, and I'll show you what do I mean by a linear situation chal rahi hai. So basically, if I was to plot this entire information, I'm going to leave some space over there because I have to make some additions over there. This is how I'm going to start plotting my diagram. I have real income on the x-axis and I have consumption on the y-axis. And I'm going to plot, obviously, 0, 0. And then try to do equal distances. 1000, 1500, 2000, 2500. Okay, these are my income levels. At different levels of income, what is basically happening? Let's say 500 for this. 1000, 1500, 2000, 2500. Where will the 45-degree line be? Well, जहां पे ये और ये point meet कर रहे होंगे, ये point और ये point meet कर रहे होंगे, this point and this point is going to be meeting. इस तरीके से ये मेरी 45-degree line जो है, that is going to come into existence. Since I'm working on a bigger space and I don't have rulers and stuff, I'll try to make it as, this is my 45-degree line for comparison purpose. Okay, it's supposed to be linear, it's supposed to be straight, not like slowing down in any way or something like that. ठीक हो गया? Let me take this out. But that's my 45-degree line here. अब जहां तक consumption की बात है, my consumption went a little differently comparatively. If you look at the numbers about my consumption, let me change some colors. Zero income के ऊपर I had 500 की consumption. At 500 I had 750 की consumption. That's a point over here. 1000 के ऊपर 1000 है. यहाँ पर it's about 1250. Okay, over here it's about 1500 and then 1750. If I draw a line, this is how my consumption sort of looks like. I'll mark it CF. That's my consumption function. Okay, and it has an intersecting point which is supposed to be 1000 and 1000. मेरा थोड़ा सा off जा रहा है, but just ignore that. 1000 and 1000 के ऊपर, this is where my consumption line and my income line sort of meets. ठीक है?
सो 45 डिग्री लाइन नहीं होती तो ये कंजम्पशन लाइन अपनी मर्जी से एक बस अपवर्ड स्लोपिंग हो जा रही होती, बट नाउ because of the income line, the 45 degree line, certain thing comes into perspective. What is that perspective? One thing is जहां पे इनकम और कंजम्पशन लाइन मीट करते हैं वहां पे मेरी सेविंग्स जीरो होगी ऑब्वियसली। इन पॉइंट्स के ऊपर 1000 से कम की इनकम के ऊपर कंजम्पशन हायर साइड पे है, इनकम कम है, तो ऑब्वियसली मेरी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव में होनी चाहिए। आई पुट लेस देन 0। 1000 से ऊपर मेरी पास इनकम आती है तो इनकम बिकम्स ग्रेटर देन कंजम्पशन, द ग्रीन लाइन इज बिलो द इनकम लाइन, सो सेविंग्स जो होगी वो ग्रेटर देन 0 है। Okay, so at least I can make a comparison. There is this saving below 1000, zero savings over here on 1000, and positive savings above 1000. This point right here where income is equals to consumption is not an equilibrium for MCQ purpose. For some of you, this must be like the 4th time you're listening to this. लेकिन this is not an equilibrium because यहाँ सिर्फ C है, and I've mentioned कि equilibrium के लिए you need to have 2 sector at least, C and I. कम से कम इतना होना जरूरी है। ओके, इनकम कंजम्पशन। अब बात ये है, इस कंजम्पशन की जो एक स्ट्रेट लाइन चल रही है इसकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। मैथ्स में हम इक्वेशन पढ़ते हैं ना, आई एम श्योर एवरीवन नोज दिस, y is equals to mx plus c. Okay, I'm going to help you with the derivation. हमारी जो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है वो है a plus by. Doesn't matter how I write it, दोनों बातें exactly same है। मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं तुमको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नंबर 1, दिस y एक्सिस जो बात हो रही है वो हमारा इस वक्त c चल रहा है, और जो x एक्सिस है उसके ऊपर y चल रहा है। इतना तो कन्वर्जन यू शुड बी एबल टू नो कि y एक्सिस के ऊपर कंजम्पशन है और x एक्सिस के ऊपर y है, तो एटलीस्ट हमारी टू हैव अ सेंसिबल इक्वेशन you need to have this। तो ये c भी आ गया मेरे पास और y भी आ गया। चलो, this m represented the slope, right? gradient होता है, इस लाइन का ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या होता है? change in y over change in x, isn't it? y2 minus y1 over x2 minus x1. I hope you know this because I haven't found any math student जिसको ये इक्वेशन नहीं आती हो ग्रेडियंट की। सबको रटी हुई है ये इक्वेशन। So in short, what this equation is telling us is change in consumption, y axis पे consumption है, over change in income, ठीक है। तो उसके लिए हम b का नोटेशन यूज कर रहे हैं, यानी ग्रेडियंट के लिए हम b का नोटेशन यूज कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। और ये जो c होता था नॉर्मली तुम्हारी इक्वेशन में वो y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। यहां पर हम उसको a का नोटेशन दे रहे हैं। तो इन अनदर वर्ड्स, इफ आई जस्ट रीअरेंज इट, a plus by plus a consumption function is actually the same thing. The slope is change in consumption over change in income. We're going to work it out, but at least अगर याद नहीं रहता तो please just remember this equation. Consumption function is equals to a plus by. अब इस b के अंदर यहां पे इक्वेशन में ये a जो है ये इनकम से तो डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हो गया ऑटोनमस। और ये जो दूसरा हिस्सा है b with y, ये y के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा induced portion हो जाता है। So consumption has two things in it. It has an induced portion and it has an induced and autonomous portion.
ये हमारे पास नंबर से आ रहे हैं, आई एम नॉट इवन मेकिंग इट। तो मेरी इक्वेशन क्या हुई, लेट्स वर्क इट आउट, लेट मी वर्क आउट माय इक्वेशन। सो इन ऑर्डर टू डू दिस इक्वेशन, a plus by, a was y इंटरसेप्ट, तो यहां ये तो मुझे पता है 500 है। अब by के लिए मुझे चेंज इन y ओवर चेंज इन x चाहिए, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ओके, दैट्स व्हाट आई नीड, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, MPC. Let me write what this MPC stands for. M obviously is for marginal propensity to consume. What this means is कि जब भी मैं $1 कमाऊंगा, उस $1 का कितना हिस्सा मैं खर्च करूंगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है चेंज इन बाय, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। दैट्स हाउ आई विल डिराइव दिस, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। सो लेट मी फाइंड दैट आउट देन, I'll try to do it for the entire thing. चेंज इन कंजम्पशन कितना है 250, राइट। चेंज इन इनकम कितना है 500, 250 डिवाइड बाय 500, 0.5 का एमपीसी है। फिर चेंज इन कंजम्पशन 250, चेंज इन इनकम 500, 0.5 है। उसके बाद 250, 0.5 है। सर इसको कहते क्या है, ये जो आपने डायग्राम बनाया है? क्या कह रहे हो? इस ग्राफ को क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन है ये बेसिकली फिलहाल तो ये हम क्यों बना रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन? ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हम इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल बनाएंगे ना आगे जाके नेशनल इनकम का, उसका सबसे पहला एलिमेंट ये है, ठीक है। ये सबसे पहला एलिमेंट है। फिर इसके ऊपर हम आई का एलिमेंट, जी का एलिमेंट, एक्स माइनस एम का एलिमेंट ऐड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमी में कोई भी इंजेक्शन या विड्रॉल होता है तो उसका कैसा इंपैक्ट आता है नेशनल इनकम के ऊपर। एंड रिजल्ट वही है, टू फिगर आउट मैथमेटिकली नंबर वाइज, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, जो कंजम्पशन का फंक्शन होगा उसमें इनकम माइनस होगी? नहीं, इनकम क्यों माइनस कर रही है? व्हाट डू यू मीन इनकम माइनस? इनकम क्यों आ रही है? सिर्फ कंजम्पशन है ना यार, क्योंकि कंजम्पशन के अंदर हम कह रहे हैं एक हिस्सा ये है जो कह रहे हैं हम कि इनकम हो या ना हो वो तुमने करनी है 500। फिर उसके बाद जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो देयर इज अ चांस, देयर इज अ लाइकलीहुड दैट पीपल स्टार्ट टू स्पेंड मोर। ठीक है सर। ठीक है, तो वो हम इसलिए एक इंड्यूस्ड पोर्शन भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनकम के साथ आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, और एक ऑटोनोमस को भी रख रहे हैं साथ में कि अगर नहीं भी होती इनकम तो भी आप खर्चा करते हो। तो MPC which we said was the gradient which is change in y over change in x, यानी change in consumption over change in income। अगर gradient constant है तो उसका ये मतलब होता है कि जो हमारी लाइन चल रही है वो लीनियर है। and this is what we know now कि ये हमारी जो B का पोर्शन है वो 0.5 हो गया बिकॉज B वाज द ग्रेडियंट, और उसके साथ Y लगा दो तो इस कंजम्पशन का प्लीज म्यूट योरसेल्फ, राइट। सो बेसिकली इस कंजम्पशन की हमारे पास इक्वेशन आ गई है, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0.5 y। ये इस कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। अब मैं तुमसे अगर कहता हूं, देखो ग्राफ में तो 2500 तक बात हो रही है, इफ आई आस्क यू ये बताओ कि अगर मेरी 4000 की इनकम है तो उसमें से कितना हिस्सा मैं कंज्यूम कर जाऊंगा अगर 4000 की इनकम है?
तो ये हमारे को फंक्शन ये आंसर सॉल्व करने में आसानी कर देगा, बिकॉज इट विल टेल अस 500 प्लस 0.5 4000, तो कंजम्पशन हो गई 2500 की. So this is what it's going to help me with. If I have the equation, I can find out for 4 लाख पे इनकम चली जाएगी तो उसका कितना हिस्सा सोसाइटी के अंदर based on our marginal propensity to consume कितना लोग consume करेंगे. ठीक है. So MPC is the same thing as the gradient, and the gradient is the same thing as the slope of the curve. Please remember this. फिर आखिरी चीज जो यहां पे we try and figure out is, यहां तो बात हो रही थी हर एक्स्ट्रा डॉलर का मैं 0.5 खर्च कर देता हूं, या मेरी सोसाइटी में हर डॉलर का 0.5 आप खर्च करते हो, which is about every change. अब बात करेंगे एवरेज propensity to consume, कि एक सर्टेन गिवन लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ऑन एवरेज आप कितना खर्च करते हो. उसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कंजम्पशन ओवर इनकम, जिस लेवल पे भी हो. फॉर एग्जांपल 500 डिवाइडेड बाय 0, इट्स अ मैथ एरर. 750 divided by 500, I think it will give you 1.5. What this is telling me is, if in my economy we are earning 500 की income, we're spending about 750. What that means is कि इकोनॉमी में तुम $1 कमा रहे हो और $1.5 खर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये जो 0.5 आ रहा है ये डिस सेविंग में से आना चाहिए. फिर अगर 1000 कमाते हो तो 1000 खर्च कर देते हो, एपीसी $1 आएगा इस केस के अंदर. फिर उसके बाद 1250 divided by 1500, I think the number is going to be, let me do it, 1250 divided by 1500, 0.83. उसके बाद इसके ऊपर आएगा 0.83 का. फिर उसके बाद आई थिंक कितना है 0.75 है, और फिर उसके बाद this one I'll have to do it, 750 divided by 2500, right? 750. So important information, please. ये क्वेश्चन आता है, ऐसा टेबल दे देते हैं, नंबर्स दे देते हैं, या ऐसा ग्राफ दे देते हैं. दोनों को देख के तुमसे पूछेंगे बताओ ऐसे कर्व का एमपीसी को क्या हो रहा है और एपीसी को क्या हो रहा है. ठीक है. Now remember, straight line का MPC gradient तो constant रहता है. That's not going to change, and that's exactly what's going to happen. Unchanged. MPC is unchanged. लेकिन APC will always fall because as income is going to rise, आपकी जो average consumption की tendency है वो गिरती जाएगी, और जो आपकी average savings की tendency है वो आहिस्ता-आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो जाती है. It's a constant situation. As long as, in fact, अगर मैं एक कंजम्पशन फंक्शन बनाता हूं इस तरह से, इनकम, कंजम्पशन, autonomous, it starts from here and it goes like this. शेप में ऑब्वियस डिफरेंसेस है दोनों के अंदर. एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होना था, उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है. उसकी ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, उसका ग्रेडियंट फॉल कर रहा है. एमपीसी फॉल कर रहा है. किसी को अगर नहीं आता ये कि किस तरीके से फॉल कर रहा है, तो लेट मी गिव यू कपल ऑफ मार्क्स पॉइंट्स. लेट्स सपोज यहां थे, यहां पे गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हूं, फिर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस रखता हूं पॉइंट बी से पॉइंट सी का. ये जो चेंज इन इनकम है वो सेम रख रहा हूं मैं. If you see from A to B, change in Y over change in X, change in Y कितना ज्यादा बड़ा है, change in consumption is big, और यहाँ पे change in consumption छोटा है.
So those who don't understand this mathematically, you can clearly see कि change in consumption गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो gradient है that is falling. So MPC तो गिर रहा है. What will happen to APC then? Well, याद कर लो, अगर MPC गिर भी रहा सर है, MPC तो सारे APC भी fall करेगा numerically. What are you saying? MPC तो 0.5 है, कांस्टेंट है. वो इस वाले केस में था. इसमें क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं है तो तुम्हारा स्लोप चेंज होगा और स्लोप गिर रहा है. There are two different cases. That's a straight line, that's a slope. You understand that? तो इसमें आपने वो 45 डिग्री लाइन नहीं बनाई. बना लो, क्या फर्क पड़ता है. That 45 degree line is just going to tell you 45 डिग्री लाइन का तो ग्रेडियंट तुम वैसे भी नहीं कर रहे हो. ये 45 डिग्री लाइन मुझे सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ पे सेविंग 0 है, यहाँ डिस सेविंग है, यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स है. लेकिन जो कंजम्पशन का ग्रेडियंट है वो तो कंजम्पशन की लाइन ही बताएगी सिर्फ. You understand? और सर ये MPC आपने ऐसे ही ले लिया है या दिया हुआ होता है, क्या होता है? नहीं, they are going to only ask you कि लाइन अगर ऐसी दी हुई है, ऐसी लाइन दी हुई है, तो MPC तुमको पता होना चाहिए कि गिरेगी, मस्ट गिरेगी, मैथमेटिकली गिरेगी. ग्रेडियंट इज गोइंग टू फॉल. ये मैथ में सीखा है हमने. मैंने सर ये तो MPC की लाइन है ना? हाँ, ये तो MPC वाली लाइन है ना? ये कंजम्पशन की लाइन है जो तुमको ग्रेडियंट बता रही है. उसका ग्रेडियंट इज फॉलिंग. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है. इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाने जाऊंगा तो A प्लस BY, लेकिन इसका ग्रेडियंट हर लेवल पे चेंज होगा. तो आई कांट अस्यूम इट टू हैव वन सिंगल ग्रेडियंट बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन बढ़ रही है. सो सतीश इज आस्किंग व्हाई कंजम्पशन इज फॉलिंग. कंजम्पशन गिर नहीं रही. देखो कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन एवरेज कंजम्पशन गिर रही है. क्योंकि अब देखो सेविंग्स बढ़ना शुरू हो गई ना. सेविंग्स को क्या हो रहा है, पहले -500 की सेविंग्स थी, अब 250 की दिस सेविंग है. सॉरी, -500 की दिस सेविंग है, -250 नो सेविंग, 250 की सेविंग, 500 की सेविंग. इनकम जब बढ़ती है तो देखो लोगों की कंजम्पशन एक लीनियर इस तरह से नहीं बढ़ती. एक पॉइंट आता है. अब लेट्स सपोज जब मैं 50,000 रुपए कमा रहा था और मेरा खर्चा था 75,000 का, दिस सेविंग या कहीं से बोरोइंग या क्रेडिट कार्ड पे चल रहा हूं. ठीक है. फिर जब मेरी 1,50,000 हुई तो लेट्स सपोज मैंने 1 लाख रुपए की मेरी इनकम हुई. सपोजिंग मैंने पूरा 1 लाख खर्च कर दिया, ऑटोनमस एंड इंड्यूस्ड. फिर मेरी 1.5 लाख हो गई. मैं पूरा 1.5 लाख नहीं खर्च कर रहा बिकॉज मेरी जो मेजर कंजम्पशन है वो मैं कर चुका हूं. अब मैं लग्जरीज और इसकी तरफ जा रहा हूं तो वो मेरी पूरी इनकम खर्च नहीं होंगी. और उसी तरह से जब मेरी इनकम 5 लाख पे चली जाएगी तो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन मेरा सेविंग में जा रहा होगा और रिलेटिवली स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम कंजम्पशन में जा रहा होगा. कंजम्पशन नंबर्स अभी भी ऊपर होंगे. आई विल बी स्पेंडिंग मोर, बट द थिंग इज प्रोपोर्शनली आई विल बी स्पेंडिंग लेसर. ये लोगों की कंजम्पशन के हिसाब से होता है, जरूरत के हिसाब से होता है. So I hope that answers the question. कि consumption is not falling, consumption is rising, average consumption is going up. What could be the case कि MPC भी बढ़े और APC भी बढ़े? There is a condition for it. Let me show you the condition for that. In fact, let me draw it over here. I have a little space. ये बहुत ही रेयर केस के अंदर ये इस किस्म का डायग्राम दे सकते हैं. यूजुअली ये सेविंग्स का डायग्राम होता है. लेकिन अगर ये ऑटोनमस ऐसा दे दें, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, इफ दे गिव यू समथिंग लाइक दिस और कंजम्पशन लिख दें उस पे, तो इस वाले के अंदर ग्रेडियंट इज राइजिंग और इस केस के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी राइज हो रहा है. ठीक हो गया.
बट दिस इज अ वेरी रेयर केस, ये सेविंग्स के अंदर होगा। अगर ऐसा कर्व दे दिया ना तो डेफिनेटली उस पे एस लिखा हुआ होगा, सी नहीं लिखा होगा। हाईली इम्प्रॉबेबल कि ये इस तरह से हो। I hope we understood this. This is our consumption. This is how the consumption equation is dealt with. Then they will ask you कि अच्छा जी ये बताएं कि MPC कैसे change हो सकता है। MPC मतलब change in consumption over change in income. What can change your MPC? What can make you हर डॉलर का ज्यादा हिस्सा कंज्यूम करो या कम हिस्सा कंज्यूम करो? This is a very forward concept, and we're going to talk a lot about that later. But let me remind you once again, every time I earn something, income, uska jo change, every time I earn some extra dollar or something, usually what happens is कि उसका एक हिस्सा मैं save करता हूँ, sorry, consume करता हूँ, whatever I need. $1 कमाया, $100 कमाया, 100 में से मैंने कहा 50 में कंज्यूम करता हूं, ठीक हो गया। फिर उसका एक हिस्सा मैं सेव भी करता हूं, लेट्स से 0.2 मैंने सेव भी कर लिया, 0.5 कंज्यूम कर लिया, हर डॉलर का 0.5 मैंने कंज्यूम कर लिया, 0.3 मैंने सेव कर लिया, कुछ टैक्सेशन में भी जाएगा, 0.2 मैंने कहा टैक्सेशन में भी चला गया, और ये कुछ हिस्सा इंपोर्ट में भी चला गया। ये एक मेरा जनरल ब्रेकअप मैं अभी से ही बता रहा हूँ, आई एम मूविंग फार अहेड। ये जो हमारे लीकेजेस थे, $1 के साथ क्या करते हो, हर 100 रुपए के साथ 50 खर्च करता हूँ, 30 सेव करता हूँ, 20 टैक्सेस में चले जाते हैं, 10 रुपए मेरा इंपोर्टेड गुड्स में चले जाते हैं। So this is what I do with my income. ठीक है, so now if I am asking कि ये MPC को क्या चीजें चेंज कर सकती है, well ये चीजें सेव चेंज कर सकती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो हो सकता है मैं सेविंग्स बढ़ा दूं, हो सकता है MPC गिर जाए। गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा दे, हो सकता है मेरा MPC गिर जाए। इंपोर्टेड गुड्स में ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दूं, हो सकता है मेरी डोमेस्टिक कंजम्पशन गिर जाए। I hope that makes sense to you. तो ये सारी चीजें मेरी MPC को अफेक्ट करती हैं कि मैं हर डॉलर का कितना हिस्सा कंज्यूम करूंगा। Any questions? No, no questions. All right. अब और क्या चीजें हैं जो लोगों की कंजम्पशन को अफेक्ट करती है? हम कहते हैं wealth. If I inherit something and I become richer, मेरी कंजम्पशन के पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। If my income goes up, मेरा consumption का pattern change हो जाएगा। I'll start consuming more probably. Taxation we've talked about. Future prices of some things. I'm expecting गाड़ियां महंगी हो जाएंगी in the future. I might buy it now. हो सकता है लोगों के tastes, attitudes वगैरह change हो जाते हैं। कोविड के दौरान लोग थोड़ा सेविंग की तरफ गए ग्लोबली, तो MPC यानी change in consumption has fallen down. ठीक है, बैंक से कितनी आराम से मुझे उधार मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर मेरी कितनी लिमिट बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट कितना है, पॉपुलेशन के अंदर एज स्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट्स टेंड टू कंज्यूम लेसर, वेरी ओल्ड पीपल टेंड टू कंज्यूम लेसर। 16 to 65 की एज ग्रुप के अंदर आपकी मेजॉरिटी स्पेंडिंग होती है, स्पेशली 35-40 के बाद आपकी थोड़ी मेजर स्पेंडिंग होती है, बिकॉज़ योर किड्स आर गोइंग टू स्कूल, यूनिवर्सिटी, घर भी ले रहे हो, गाड़ी भी ले रहे हो, और साथ में इनकम भी होती है टू सपोर्ट इट, but the thing is your consumption patterns tends to be a little more, so everything is not as simple as this a linear। लेकिन हमने क्या किया, एक मॉडल बनाने के लिए, एक नेशनल नंबर्स को लेने के लिए सबकी जब हम सर्वे करते हैं वी फिगर इट आउट, तो हमारे पास काफी हद तक एक लीनियर इक्वेशन वी कैन से कि वी कैन वर्क विद दैट एट लीस्ट जस्ट टू मेक सेंस, बट अगेन मॉडल है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इनएक्यूरेसीज इन इट, दैट्स पॉसिबल। ओके, सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच कैन so can we say that 2500 consumption is GDP? Nahi. GDP is CIGX minus M. At least अगर 2 सेक्टर है तो C plus I तो होगा।
तो इसमें आई मिसिंग है, तो आई कांट से 2500। लेकिन अगर तुम इस एक्सिस पे कह रहे हो कि अगर 2500 जीडीपी है, फिर ठीक है बात। 2500 पे अगर जीडीपी है तो आपकी जो कंजम्पशन है वो 1750 है। इसमें अभी इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, तो हमें इक्विलिब्रियम भी नहीं पता। बट ये इस एक्सिस के ऊपर आप यू कैन से कि आप रियल इनकम या जीडीपी को मेजर कर रहे हो। एब्सोल्युटली, दैट्स फाइन। ऑलराइट, सो I will take a few things out. Okay, in fact, let me take more things out because you probably have it. So I'll ask you to refer to the notes. I'll keep this diagram. इसमें मुझे थोड़ी सी changes करनी होंगी, so you will be required to make this one. ठीक है? तो ये तो मेरा कंजम्पशन था। दिस टाइम आई एम गोना टेक अवे द कंजम्पशन। मुझे इतनी ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, बेस्ड ऑन माय नंबर्स, आई एम गोना चेंज अ फ्यू थिंग्स। I'll keep the same numbers over here. Because what we know is, in a two sector basic simple economy, whenever I earn an income, उसका एक हिस्सा मैं कंज्यूम करता हूं तो दूसरा हिस्सा सेविंग में जाएगा। ठीक है? तो basically what I can do over here is I can figure out my savings के numbers. Okay, I'm just going to try and figure out my savings के numbers. तो पहली तो हो गई दिस सेविंग। ओके, जीरो की इनकम है, कंजम्पशन यहीं पे डाल के देख लो। 0 इज इक्वल्स टू 500 प्लस एस, ये यहाँ गया माइनस 500 हो जाएगा। आई कांट डू सच अ बेसिक मैथ, यू नीड टू नो दिस। यहाँ पे अब मेरी सेविंग हो रही है टू नेगेटिव 250, 0, 250, I think 500, and then ये मेरे सेविंग्स के नंबर आ गए फ्रॉम द सेम थिंग्स। ओके, इट्स नथिंग डिफरेंट, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसी की बेसिस के ऊपर नाउ आई विल ट्राई एंड फिगर ये आउट सेविंग्स की इक्वेशंस, ये इक्वेशन कहाँ से है इसकी? y इक्वेशन is मैंने equals अभी to तक c की plus नहीं s। है। इक्वेशन मैंने सेविंग्स की फंक्शन की इक्वेशन नहीं की, लेकिन मैंने ये अस्यूम किया है कि हर डॉलर जो मैं इनकम कमा रहा हूं उसका एक हिस्सा कंज्यूम करोगा तो दूसरा हिस्सा सेविंग्स में जाएगा। ये टू सेक्टर और नहीं है imports अभी भी। वगैरह It's और not two sector taxes। as yet. I'm just talking from the household perspective कि household के पास जब circular flow होता है, ये two sector तब होगा जब मैं बोलूंगा saving investment के बराबर भी है। The moment I say this, तो ये क्या है, वन ये सेक्टर two है क्या? sector हो गया है। देखो one sector तो exist हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो फिर ये क्या है? तो ये इस वक्त फॉर द मोमेंट ये एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूं कि एक इंडिविजुअल जो है अगर 100 रुपए कमाता है उसमें से 70 कंज्यूम करता है तो बाकी 30 कहां जाएगा? तो हम कह रहे हैं वो सेव कर रहा है। ये एक हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अब उसने सेव किया बैंक के अंदर, फर्म्स ने वो पैसा बोरो किया, तो अब वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो उसका विड्रॉल और इंजेक्शन भी मैच हो गया। अब यू अंडरस्टैंड? तो ये टू सेक्टर हो गए, और वन सेक्टर तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये चलो कह लो टू टू सेक्टर सेक्टर में टैक्सेस नहीं होते? नहीं, टू सेक्टर विदाउट गवर्नमेंट यू वुड से। इफ देयर इज अ टू सेक्टर दैट मींस इट्स विदाउट गवर्नमेंट। थ्री सेक्टर you will have C, I and G. C और G नहीं हो सकता, I और G नहीं हो सकता। You need to have C with I, because household और firms के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। फिर तीसरी चीज गवर्नमेंट आई। You understand that? ठीक है सर। Okay, great. MPS निकालना है, वही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। हर डॉलर का कितना हिस्सा सेव करते हो, तो फॉर्मूला है चेंज इन एस। चेंज इन एस कितना है? -500 से -250 पे गया।
दैट्स अ पॉजिटिव 250 की सेविंग्स। इनकम में कितना चेंज आया? 500 का चेंज आया। 250 डिवाइड बाय 500, 0.5 का एमपीएस आ गया हमारे पास। फिर अगेन 250 की सेविंग, 500 का चेंज इन इनकम, 0.5 आ गया दोबारा। 250 की सेविंग, 500 का इनकम, 250 की सेविंग, 500 का इनकम, it just keeps on going. MPS is 0.5 throughout. In fact, I know कि जो मैं कंज्यूम नहीं कर रहा वो मैं सेव कर रहा हूं, तो अगर मैं $1 कमाता हूं उसका 0.5 बेस्ड ऑन दीज नंबर्स, अगर 0.5 मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो आई एम अस्यूमिंग 0.5 जो है मैं सेव भी कर रहा हूं। अब इसकी जो लाइन बन रही है, लेट मी ड्रॉ द लाइन अकॉर्डिंग टू the numbers that I have. जीरो इनकम के ऊपर -500 फर्स्ट पॉइंट, 500 के ऊपर 250 will be like midway point over here, 250, 1000 के ऊपर 1000, 250, 500, 750। थोड़ा सा crooked है, does not matter, don't let it be crooked, straight line बनेगी, gradient constant ही होगा, 1000 के ऊपर it should intersect this line and go. This is how this is supposed to be. ये मेरा savings का function है based on the numbers over here, the green savings के numbers with the corresponding income levels. This is how it's going to be. अगर मैं अपने कंजम्पशन के, इफ यू कैन रेफर टू योर डायग्राम्स, कंजम्पशन के जो तुमने बनाए, बिलो 1000 दिस सेविंग हो रही थी और ये नेगेटिव के अंदर है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द दिस सेविंग। यहां 1000 के ऊपर कंजम्पशन वाज इक्वल्स टू इनकम, सेविंग हमने कहा था 0 है, और यहां पर सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव है बिकॉज इनकम वाज ग्रेटर देन कंजम्पशन। So on the right of 1000 जो है तुम्हारा पॉजिटिव में चला जाएगा, सेविंग्स का फंक्शन। यहां डिस सेविंग भी आ गई। अब उसी इक्वेशन को one second, let me just go over the questions. Can you show consumption on this diagram? हाँ, मैं अगर वो पुराने वाले को नहीं हटाता, let me bring that पुराना वाला again जो मैंने बनाया था। That was my 45-degree line. और ये मेरी कंजम्पशन की लाइन चल रही थी A प्लस BY। चलो सेम डायग्राम के अंदर आई रिप्रेजेंटिंग बोथ ऑफ देम। ये दोनों पॉइंट मीट करने चाहिए, ठीक है, मेरा थोड़ा सा ऑफ मीटिंग है बट ये दोनों पॉइंट्स मीट होने चाहिए थे। बस 1000 के ऊपर जो है और 45-degree लाइन वाज सपोज्ड टू गो लाइक दिस। ठीक हो गया, एक ही डायग्राम में बना लिया, चलो सेम बात है। ओके, ये जो MPS एंड MPC ये दोनों हमेशा एक ही वैल्यू होती है और कैन इट फ्लक्चुएट? इट कैन। किस तरह से? स्लोप चेंज कर दो। अगर इसका स्लोप 0.7 कर देते हैं तो इसका स्लोप 0.3 हो जाएगा, बिकॉज हर डॉलर का आप एक हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो, एक हिस्सा सेव कर रहे हो। यहाँ पे बाय चांस 0.5 कंजम्पशन था तो 0.5 सेविंग हो गया। अगर 0.6 कंजम्पशन है तो 0.4 सेविंग्स हो जाएगी। इट कैन डेफिनेटली चेंज, इट कैन चेंज कंजम्पशन। MPC और MPC आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लाइन का स्लोप ऐसे हो जाता, MPC ऐसे हो जाता जैसे आई हैड वर्क बिफोर, लेट मी ब्रिंग इट बैक। लास्ट टाइम मैंने ऐसे बनाया था कंजम्पशन का, अगर ऐसे होगा तो इसका जो सेविंग्स का होगा वो नेगेटिव से आएगा और इस तरीके से जाएगा। दिस इज हाउ द सेविंग्स विल बी। जहां ये पॉजिटिव कंजम्पशन होगी वहां ये नेगेटिव होगी। इसका MPC गिर रहा होगा तो इसका MPS बढ़ रहा होगा। खैर, ये सब MCQs और उसकी तुम उसके अंदर देखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, बट एटलीस्ट चलो यहाँ पे हमने दिखा दिया। ये दिस सेविंग्स यहाँ पे भी दिख रही है, ये सेविंग्स यहाँ भी दिख रही है, और ये हमारा
एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट्स हो जाते हैं दोनों के। आई होप दैट्स क्लियर। एक सेकेंड, लेट मी सी हु ऑल इज हियर। Okay, great. So let me carry on. I hope you understood this, how my savings function came into existence over here. Savings की equation भी आनी चाहिए तुमको। Equation बड़ी simple सी है। Consumption की equation थी 500 प्लस ग्रेडेड था 0.51। ये कंजम्पशन की फंक्शन थी, इफ यू रिमेंबर। सेविंग्स की फंक्शन जहां पे जीरो इनकम पे तुम कंज्यूम 500 कर रहे हो, वहां पे सेविंग माइनस में होनी चाहिए, तो -500 कर लिया, ठीक हो गया। हर डॉलर का अगर 0.5 कंज्यूम कर रहे हो तो हर डॉलर का 0.5 सेव भी कर रहे हो। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही 0.5। 1 माइनस कंजम्पशन का जो ग्रेडियंट था, which in this case will give you 0.5 anyways। तो इक्वेशन क्या हुई सेविंग्स की, ए पॉजिटिव था तो माइनस ए, बी एमपीसी है, तो अगर मैं 1 माइनस बी कर देता हूं तो वो एमपीएस बन जाएगा। ये तुमको आनी चाहिए इक्वेशन कन्वर्जन। लेट मी गिव यू विद सम अदर नंबर्स ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट्स सपोज कंजम्पशन फंक्शन था 750 प्लस 0.71। ऑटोनोमस 750 मैंने खर्च करना ही है, तो -750 तो डिस सेविंग हो गई। हर डॉलर का 0.5 अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो हर डॉलर का 0.3 मैं सेव करता हूं। ये इसकी इक्वेशन हो गई। जस्ट रिवर्स इट, सिंपल एज दैट। ऑटोनोमस पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया और बाकी उसमें से 1 माइनस एमपीसी कर लोगे तो एमपीएस बच जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट और सेविंग्स का फंक्शन। One more thing, यहाँ पे APS रह गया है। Let me work out the APS. If you have any questions with this, please do ask me. ये equation के MCQs तुमको आने चाहिए। Last thing, average propensity to save को क्या होगा? हाँ जी पूछो। सर मैं बोल रहा हूँ सेविंग्स वाला फंक्शन वापस समझा दें। Savings का function, okay, let me go over it again. दिस वाला पार्ट जो मैंने इक्वेशन लिखी थी या इसके साथ वर्क करूं? इसके साथ। ओके, सो ये वाली जो हमारी लाइन थी उसमें हमने कहा था कि कंजम्पशन का एक ऑटोनोमस हिस्सा है और एक इंड्यूस्ड हिस्सा है। ये हमारा बी रिप्रेजेंट कर रहा था और बी जो था वो स्लोप था, वो एमपीसी था, ठीक है। सेविंग्स के अंदर जीरो इनकम पे अगर मैं कंजम्पशन कर रहा हूं तो वो -500 है। जीरो इनकम पे सी अगर 5 था तो सेविंग्स -500 है। और अगर मैं एमपीसी हर डॉलर का 0.5 कंज्यूम कर रहा हूं तो उसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस बी करूंगा तो एमपीएस निकल आएगा। हर डॉलर पर कितना मैं सेव कर रहा हूं, जो इस केस में 0.5 ही है। तो बेसिकली सेविंग्स की इक्वेशन हो गई -a प्लस 1 माइनस बी वाई। यहां पे अगर मैं एमपीएस भी लिख दूं ना तो बात ठीक हो गई। इट्स द सेम थिंग, और 1 माइनस बी करो तो वो भी एमपीएस रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्ट एमपीएस लिख दो तो वो भी एक ही बात हो गई। इस केस के अंदर वो 0.5 है। फिर मैंने वो दूसरी इक्वेशन करके दिखाई कि अगर लेट्स सपोज ये 0.7 हो जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सेविंग्स की आपकी टेंडेंसी होगी वो रिलेटिवली कम हो जाएगी, बिकॉज हर डॉलर में से कुछ हिस्सा कंज्यूम करोगे, कुछ सेव करोगे।
बाय द वे इससे सिर्फ ये चेंजेस नहीं आएंगे, इससे इस लाइन के ग्रेडियंट्स चेंज हो जाएंगे, which we will practice आगे जाके क्वेश्चन के अंदर later on, but at least for now you have to understand कि अच्छा जी ये सिचुएशन है, तो what is going to happen? APS निकालोगे तो ये यहाँ से वर्क कर लोगे, पहले के अंदर तो you will have a math error, -500 divided by 0 you can't have a value, फिर -250 divided by ये करोगे तो I think you get a value of 0.5 negative के अंदर, फिर you get a value of 0, और 0 divided by 1000 will give you 0, और उसके बाद I think 0.17 आ रहा था, फिर 0.25 आएगा, और फिर 0.3 आएगा. I'm just doing this, savings divided by income. And the reason why I was able to do it so fast is because मुझे APC के numbers याद थे. मेरे APC के numbers जो मैंने निकाले थे यहाँ पर this divided by this divided by this, असल में होना ये चाहिए कि APC plus APS should equals to $1. हर डॉलर का एक हिस्सा कंज्यूम होता है, एक हिस्सा सेव होता है. अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पहले डॉलर का 0.5 कंज्यूम हो रहा है तो 0.5 सेव भी होगा. फिर अगर मैं कह रहा हूं 0.8 मैं अगर कंज्यूम कर रहा हूं तो फिर आई वुड से कि 0.2 जो है मेरा वो सेव हो रहा होगा. इट हैज टू कम फ्रॉम दीज टू. ये भी क्यों है, ये भी मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर देता हूं कि ये बात ऐसी क्यों है. You know how we used to say income is equals to consumption over savings? ये एवरेज सेविंग्स का फॉर्मूला हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिवाइड कर दोगे क्या निकलेगा, 1 is equals to APC plus APS. तो ये हर तरीके से this is what you're going to get. So that's how we did the numbers, that's how our savings came about. ये savings का function हो गया, ये consumption का function हो गया. So this is how we will start with our मॉडल, जिसमें सबसे पहले तुमने कंजम्पशन का बनाया. यूजुअली सेविंग्स का मैं अलग बनाता हूं, लेकिन एक ही डायग्राम में यू कैन ऑब्वियसली शो देम एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू लुक. ठीक है, ओके. फिर वो पूछते हैं सेविंग्स की जरा बता दो, व्हाट कैन इन्फ्लुएंस सेविंग्स. तो हमने कहा इनकम सेविंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इंटरेस्ट रेट कर सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग सेविंग ज्यादा करते हैं. फिर लोगों के सर्टेन टारगेट्स होते हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, हॉलिडे पे जाना है, उसकी वजह से लोग सेविंग्स कर सकते हैं. सेविंग्स के ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं वक्त के साथ. पहले ज्यादातर बॉन्ड्स होते थे, फिर शेयर्स भी आप खरीद सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो, यू नो डिफरेंट गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं. बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से आप सेविंग्स कर सकते हो. फॉरेन एक्सचेंज आजकल बहुत प्रमोट हो रहा है, आई एम श्योर फोन्स पे तुम्हारी रैंडमली बीच में एड्स आ जाती होंगी. ऑक्टा, एफएक्स और ये लोग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं. सो दैट कैन एनकरेज सेविंग्स आल्सो. सोशल एटीट्यूड हो सकता है अबाउट सेविंग्स. इन्फ्लेशन कैन हैव एन इफेक्ट ऑन सेविंग्स. इन्फ्लेशन में क्या होता है, यूजुअली आप पेरिशेबल गुड्स के लिए सेव करते हो और ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर कंजम्पशन बढ़ा देते हो. इन्फ्लेशन अगर ये इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन, देन हैबिट्स की वजह से लोग सेव करते हैं. कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग्स हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आई इन्वेस्टेड इन लाइक रियल एस्टेट जिसमें बुकिंग मैंने करा दी है, नाउ आई हैव टू पे मंथली एक्स अमाउंट. या किसी पेंशन फंड में आई हैव टू यू नो पुट एक्स अमाउंट ऑफ सम एवरी ईयर. तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम वी कैन टॉक अबाउट इट. ठीक हो गया. सो दैट्स दैट. ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया. Okay, so basically so one of the student also raised this issue कि मैक्रो के लिए टाइम थोड़ा सा कम है, and I agree with him absolutely. तो
I think the better idea would be that we'll continue with macro almost on every day basis, जो 5 days a week हमारा चल रहा था. And micro का revision, I'm not going to go over the concepts the way I was doing it abhi. What I'll do is instead on Tuesday, Thursday, not 7 o'clock, but at 4 o'clock, 7 o'clock पे जो क्लास होगी उसके अंदर तो मैं मैक्रो कराऊंगा, ठीक है. सो बेसिकली मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, ये सब मैं मैक्रो अप करा रहा हूँ, ठीक है. और जो ट्यूसडे थर्सडे होगा उसके अंदर 4 बजे प्रोबेबली आई विल स्टार्ट ऑफ विद पास्ट पेपर्स ऑफ माइक्रो and case studies या जो भी होगा, तो 4 to 5:30, मेरे ख्याल 4 to 5 या 3:30 to 5, 1.5 घंटा अगर जरूरत पड़ी तो then I'm gonna push the past papers over there. Because micro की divisions, honestly I've done it way too many times. अगर कोई बोलेगा तो special request के ऊपर I can go over my market structures, बट वो मैं फिर सेपरेट टाइम दूंगा और फिर तुमने उस पर आना है और उसी के ऊपर ही करना है. बट आई जस्ट वांट टू गेट डन विद दिस नाउ, ठीक है. मैक्रो को जितनी जल्दी कर सकें, बिकॉज वी आर फार बिहाइंड, वी आर ऑलमोस्ट लाइक 2 months बिहाइंड, तो 5 days a week करके मुझे उसको पिकअप करना होगा. एंड एट दिस पेस यूजुअली आई वुड टेक 2 to 3 hours to go over all of this material, which I did in 1 hour or lesser. ठीक हो गया. I hope you understood this, and this is how our consumption and saving came about, and this is how we derived our first diagram. और फिर आगे इसके ऊपर और further discussion होता जाएगा. तो पहला component is done. Look into the notes for more information on this. ठीक है? Google Drive के ऊपर you can go and full detail के अंदर यही चीज मैंने proper notes workbook को solve करते हुए की है. In 3-4 hours in fact. तो ये हो गया हमारा पहला. I'm not going to take much time, और मैं कोशिश करके अगले 15 मिनट में दूसरा कंपोनेंट भी कर लेता हूं. Our second component in discussion is I. और ये आई बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है. सी के लिए हाउस होल्ड्स के लिए कंजम्पशन था, बिजनेसेस और फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट है. अब पहली बात तो ये आती है कि इन्वेस्टमेंट है क्या. तो हमने कहा भाई इन्वेस्टमेंट ये होती है जिससे आप कोई फ्यूचर के अंदर इनकम जनरेट करने के लिए पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं. 2 जगह हमने देखा था जो इफ यू रिमेंबर जो हमने एमसीक्यूज किए थे जीडीपी के अंदर, उसमें एक इन्वेस्टमेंट वाज इन कैपिटल स्टॉक जो हमने जीडीपी के एक्चुअल गवर्नमेंट के नंबर्स में देखे थे, और एक था फिजिकल इन्वेंट्री के अंदर. ये 2 इन्वेस्टमेंट्स की बात. इन्वेंट्री we have seen it in GDP के actual figures के अंदर. You are aiming to get something out of these fixed capital formation या capital stock कह लो, एक की बात है. अब बात यह है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है कि इंड्यूस्ड है. मतलब क्या इन्वेस्टमेंट का जो एलिमेंट है वो नेशनल इनकम यानी इनकम के साथ चेंज हो सकता है या इनकम से इंडिपेंडेंट है. तो उसकी 2 थ्योरीज हैं. एक है MEC थ्योरी. MEC थ्योरी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. MEC थ्योरी. MEC थ्योरी जो है हमारी वो ऑटोनोमस कह रही है इन्वेस्टमेंट को. ऑटोनोमस मतलब इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको. इनकम कम हो या ज्यादा हो मेक्स नो डिफरेंस. इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स. वी टॉक अबाउट दैट इन अ बिट.
Second theory we're going to talk about is called the accelerator theory. MEC theory है by the way ये भी, ठीक है? This is also a theory. दो theories हैं हमारी investment के अंदर. The accelerator theory is induced. Since with some of the kids I did have a discussion on today about this, so let me remind you once again, school of thoughts, we will eventually talk about the school of thoughts later on some point पे. So for now just remember कि ये जो MEC theory है, ये monetarist school का point है, they believe in that. और ये जो है हमारा दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है केन्जियंस का, वो इस थ्योरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं. दिस विल कम लेटर ऑन मनी के चैप्टर के अंदर इसका डिस्कशन, बट फॉर नाउ देयर आर टू थ्योरीज दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग, द MEC थ्योरी एंड द एक्सेलरेटर थ्योरी. What is the difference? Well, they say something else determines the rate of investment. And they say national income has a big role in the level of investment. So let me explain it to you how. जो हमारी पहली थ्योरी ऊपर जो मैंने लिखी है MEC थ्योरी, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट is dependent on interest rate. कितने में पैसे बोरो हो सकते हैं उस पे डिपेंड करता है. अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न होता है. सो इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट rate of return on an investment, etc. So let me talk about this. According to them, होता ये है कि there are several projects that you can invest in. ठीक है? So I gave an example of 3 to them. I think I don't remember what they were, but let's say एक है grocery store, एक investment opportunity. दूसरा I said petrol station. And तीसरा I said autonomous independent होता है या dependent? Autonomous का मतलब है automatic, to have your own autonomy, to have your own power, having no effect, independent of anything else. Independent, not dependent, independent. Induced will be dependent of income. Autonomous, no dependency on income. एंड कंस्ट्रक्शन, 3 किस्म के काम है जो कर सकते हो. बात यह है इनके रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है. द मनी दैट यू इन्वेस्ट, उस पे कितना परसेंटेज मिलेगा. तो ग्रोसरी स्टोर का जो रिटर्न होना चाहिए वो रिलेटिवली कम होना चाहिए. आई से 3%. पेट्रोल स्टेशन का रिटर्न थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा रिटर्न होना चाहिए. रफली नंबर्स दे रहा हूं, ठीक है. अब बात ये हो रही है मैंने इन्वेस्ट करना है, मैं तीनों में करूंगा अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन ऑब्वियसली इट विल डिपेंड. तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर रिटर्न ज्यादा होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसपे रिटर्न अच्छा होता है. अब लेट्स सपोज मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 1%. मुझे कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? इफ आई कुड बोरो मनी एट 1%, मुझे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? आई वुड से ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए. तीनों करने चाहिए. इसके अंदर मैं 6% कमाऊंगा, इसमें 10% ये हो गए और इसमें 2, तो 12% रिटर्न मुझे मिल सकता है. दैट्स गुड. आई शुड डू ऑल ऑफ दैट.
लेकिन अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट 4% है, 4% पे पैसे बोरो करूंगा, 3% के काम में लगाना तो अकलमंदी नहीं है। यहां 1% कमा सकता हूं और यहां पे 3% कमाता हूं, तो तकरीबन मुझे 4% का रिटर्न यहां भी मिल जाता है। तो 4% के ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, पहले मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, अब मैं कम इन्वेस्ट करूंगा। एंड सिमिलरली दिस कैन कीप ऑन गोइंग। अगर ये 6% होता तो नेचुरली ना ये इन्वेस्टमेंट होती, ना ये इन्वेस्टमेंट होती, और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट होती। सो आई कैन कंक्लूड विद दिस, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी। Will it take the exchange rate? The thing is, we're not talking about international over here, so exchange rate is irrelevant over here. This is about me borrowing from the bank at 6% and investing in domestic investment. तो उसमें मुझे कितना रिटर्न आ सकता है? Okay? No discussion of exchange rate in any way, for now at least. So on this note, इसका एक डायग्राम बनता है जिसमें इन्वेस्टमेंट हम रखते हैं इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, और रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट रखते हैं इधर। सर ये ऑटोनमस कैसे हुआ? ये तो डिपेंडेंट है इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट पे, इनकम पे नहीं। ऑटोनमस इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। ये इनकम से बिल्कुल, इसके हमने कहीं पे भी बात ही नहीं की इनकम की, तो नेशनल इनकम की। अच्छा अच्छा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट। तो बेसिकली व्हाट वी हैव हियर इज कि चलो हमारे पास ये डायग्राम आ गया, और ठीक है, अब क्या करते हैं, एमईसी की लाइन होती है इस तरह से, रेट ऑफ रिटर्न की लाइन जो है वो इस तरह से लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं। एमईसी की लाइन आ गई है। अब बात यह है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर इंटरेस्ट रेट इतना है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट इज हियर, जहां पे रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू द इंटरेस्ट रेट। इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, I'll call it I0 let's say। इतनी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, मुझे इतना और प्रॉफिट आ रहा है। तो बल्कि लेट मी मार्क इट एंड शो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट I1 पे कर रहा होता, इतना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इतना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, लेट्स टेक इट। द थिंग इज, अगर मैं I2 पे इन्वेस्ट करता हूं, इतना इंटरेस्ट रेट है और इतना और मजीद रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, टेक दिस, टेक दैट, इनफैक्ट गो अप टू दिस पॉइंट कि जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाता है। इससे आगे जाओगे तो ऑब्वियसली बैड आइडिया, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न कम है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो ये तो नुकसान वाला आइडिया हो गया। तो लेट्स गो बैक, and therefore this is a profit maximizing level of investment। इस बेसिस के ऊपर MEC थ्योरी का ख्याल ये है कि MEC की लाइन जहां पे भी इंटरेस्ट रेट को कनेक्ट करती है, that is the profit maximizing level of investment that you should do। Anything more or less is not going to maximize on the returns। Let's suppose अगर interest rate गिर जाता है, what's going to happen?
इंटरेस्ट रेट गिर गया, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता तो इस करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एमईसी कम है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बैड आइडिया, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप अपनी कट डाउन करोगे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल मार्केट्स आल्सो। जब आप पैसे बोरो करके शेयर मार्केट में जाते हो, प्रॉपर्टी मार्केट में जाते हो, बिजनेसेस में जाते हो, जब इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ाती है तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो रिटर्न होता है वो सेम प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स पे नहीं रहता। हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल ही एक्स्ट्रा, बिल्कुल मार्जिन पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि फिर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे नुकसान हो जाए, या इंटरेस्ट रेट इज हायर देन द रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फिर आप कट बैक करते हो एंड यू डोंट डू दोस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एमईसी का आइडिया। इस पे ये एमईसी यानी रेट ऑफ रिटर्न भी चेंज हो सकता है। दिस लाइन कैन शिफ्ट आल्सो। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ रिटर्न कैसे चेंज हो सकता है? मशीन सस्ती हो गई, आपको गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट के ऊपर, मशीन के ऊपर ड्यूटी कम कर दी, या आपकी करेंसी में अप्रिसिएशन आ गई, तो आपको बाहर से जो इंपोर्टेड मशीन आ रही थी वो आपको सस्ती पड़ गई, आपका प्रोजेक्ट का ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिटर्न अच्छा हो गया। गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दी वो मशीन आपके लिए, आपका रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया। आप पे बिजली सस्ती कर दी, रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया। ठीक है, लेबर को स्किलफुल बना दिया, प्रोडक्टिव हो गए, आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया। So all the things which can increase your revenue or reduce your cost can increase the rate of return on the investment that you're doing. And anything that's going to increase the rate of return is going to shift the curves to the right or to the left. बात यह है जहां पे भी rate of return और interest rate meet करेगा, वो तुम्हारा profit maximizing level of investment बन जाएगा। I hope that clarifies the MEC theory. ये monitors का view है, and they feel कि you know what, investment is dependent on interest rate, nothing to do with national income. That's our second theory. All right. The opposite theory of what we've just spoken is called an accelerator theory. एक्सेलरेटर थ्योरी का कहना यह है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंडेंट है नेशनल इनकम पे। क्यों? एक्सेलरेटर थ्योरी का assumption क्या है? वो ये बोलते हैं कि देखो, इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हो? तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट आप इसलिए करते हो कि आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से मशीन्स लोगे या इन्वेंट्री बढ़ाओगे तो यू नीड टू हैव अ बिगर कैपेसिटी। तो बेसिकली बिगर कैपेसिटी की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? वेल, अगर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड प्रोडक्शन की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर मेरे पास खाली मशीन्स हैं तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा? अगर मेरे पास अच्छी डिमांड है तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक हो गया? तो जितनी बड़ी कंज्यूमर की डिमांड उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। अब कंज्यूमर की डिमांड जो है वो तो कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंडेंट है। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, और कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। इसमें हमने इंटरेस्ट रेट की तो कोई बात ही नहीं की। लेट्स सपोज कंज्यूमर की डिमांड कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे? फैक्ट्रीज तो खाली पड़ी है, कंज्यूमर तो प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा, तो फिर इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? Even if the interest rate is low, it doesn't make sense. Why would you invest? हाँ, अगर डिमांड अच्छी है, रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, एडी भी बढ़ रहा है,
और आपके पास कैपेसिटी फुल है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम लेट मी रिमाइंड यू, कोविड आया, कोविड में डिमांड गिरी। जब कोविड में डिमांड गिरी तो बैंक्स ने सबसे पहले, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट तो एमईसी थ्योरी के हिसाब से सोच रही है। व्हाट द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग इज कि अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो कंज्यूमर्स भी बोरो करेंगे, बिजनेसेस भी बोरो करेंगी, और वो इन्वेस्टमेंट भी होगी और कंजम्पशन भी होगी, और इकोनॉमी माइट स्टार्ट टू गो अप आल्सो। तो एमईसी थ्योरी भी टू एन एक्सटेंट ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू फेवर वन ओवर द अदर, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम इन देयर ओन मेरिट्स। एमईसी थ्योरी की ये बातें हैं और एक्सेलरेटर की ये बातें हैं, व्हिच आल्सो मेक्स सेंस। सो एक्सेलरेटर का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, कितनी नेट इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी आने की जरूरत है, वो डिपेंडेंट है नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ, मल्टीप्लाई कर दो ए से। ये ए हमारा वो वाला ए नहीं है ऑटोनोमस वाला, ये ए हमारा है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट। एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट कहते हैं ये। एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट बेसिकली एक कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है। ये एमसीक्यूज में बहुत आता है। ये ए जो है ये कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है, और ये फिक्स्ड होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसकी अजम्पशन कांस्टेंट होती है। सर आपने कहा था ये इनकम पे डिपेंडेंट है। ये इनकम पे डिपेंडेंट है, इसी वजह से तो ये ऑटोनोमस इंड्यूस्ड हो गया एक्सेलरेटर थ्योरी। बस अगर नेशनल इनकम का मैं ये नंबर चेंज करूंगा, वो ऑटोमेटिकली इससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि कांस्टेंट नंबर है, और उससे मेरी इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी। अब लेट मी वर्क आउट इनकम का बता दें वापस कि क्या क्या बता दूं। नेशनल इनकम का मतलब बता दें। जीडीपी। जीडीपी जीडीपी बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम्स बढ़ेंगी, तो फिर उसका इंपैक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और चेंज इन इनकम अगर होगी तो उसका इंपैक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। लेट्स से व्हाट दे से इज कैपिटल टू आउटपुट रेशियो ये बोलता है कि लेट्स सपोज आपको $2 का कैपिटल अगर आप एंगेज करोगे तो वो आपको $1 का आउटपुट बना के देगा। $2 का कैपिटल $1 का आउटपुट बना के देगा, फॉर एग्जाम्पल। और ये एवरी ईयर बाय द वे, ये नहीं है वन पर्सन माइट बी थिंकिंग कि $2 में इन्वेस्ट करूंगा और $1 आएगा, तो ये तो बेवकूफी है। एवरी ईयर दिस इज यू आर गोइंग टू गेट दिस। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस। Like I gave them an example earlier, okay, let's suppose Google wants to invest or Amazon wants to invest in Pakistan, और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन का काम करना चाहते हैं, रिटर्न सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, $1 बिलियन का। तो उसके लिए उन्होंने वर्कआउट किया कि हमको $2 बिलियन का कैपिटल रिक्वायर्ड है। एक दफा $2 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान में डाल दिया ऑन द मशीन्स, ऑन ट्रेनिंग द ह्यूमन रिसोर्स, ऑन गेटिंग द वेयर हाउसेज, और ये सब चीजें $2 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया, कैपिटल डाल दिया। नाउ एवरी ईयर दे गोइंग टू गेट $1 बिलियन का रिटर्न फ्रॉम इट, $1 बिलियन की सेल्स फ्रॉम इट, ठीक है। नाउ दे थिंक हमको इसको लेके जाना है $2 बिलियन पे, तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नई इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। वेल द थिंग इज $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मुझे $1 बिलियन कमा के दे रही थी हर साल, तो यहां पे मुझे $4 बिलियन की रिक्वायरमेंट है।
दो तो पहले लगी हुई हैं, तो जो नेट चेंज आएगा वो $2 का होगा, उससे आई विल बी एबल टू रीच द 2 बिलियन का मार्क विच आई वांट। द चेंज कैपिटल रिक्वायरमेंट तो 4 है, इसका मैंने एक ग्राफ भी एक टेबल के थ्रू ये बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, सो लेट मी गो ओवर द टेबल वंस। द टेबल सेज डिजायर्ड आउटपुट के कुछ नंबर्स हैं, numbers are like 200, 220, 250, 300, and then let's say 200 पे ले जाता हूँ वापस। ये डिजायर्ड आउटपुट लेवल्स हैं कि कितना जीडीपी रिक्वायर्ड है, 200, 220, 250 वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मुझे कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? अगर मेरा कैपिटल टू आउटपुट रेशियो दिया हुआ है $2 का, हर $1 बनाने के लिए $2 का कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो ये 200 का आउटपुट निकालने के लिए मेरे पास कम से कम $400 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है? एंड आई विल बी एबल टू गेट दिस रिटर्न 400 की इफ आई डू इट। 220 के लिए आई नीड 440 की इन्वेस्टमेंट टोटल, ओके, नॉट न्यू। 250 के लिए आई नीड 500 की नई इन्वेस्टमेंट, 600 इसके लिए आई विल नीड द सेम 400। ये तो मेरे रिक्वायर्ड कैपिटल है इनके लिए। अब बात यह है कि मुझे असल में नेट इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। पहले तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, 400 की रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज मैंने कर दी है 400 की, दैट्स डन। अब मेरे पास 400 का कैपिटल लगा हुआ है जो 200 का आउटपुट इनकम जनरेट करके दे रहा है। फिर मेरी आउटपुट के अंदर चेंज आ गया कितने का? 20 का। तो मेरी कैपिटल में कितना चेंज आना चाहिए? इतनी की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मैंने कहा 40 की मुझे फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसको मैं फॉर्मूले के साथ से करके देख लेता हूं। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो 2 है, नेशनल इनकम में जो चेंज आ रहा है वो 20 का आ रहा है, इन्वेस्टमेंट दैट आई रिक्वायर इज 40। फिर उसके बाद और तेजी से आउटपुट बढ़ गया, कितने से? 30 से आउटपुट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट, मुझे नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है 60 की। आउटपुट पे डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट। फिर ग्रोथ और तेज हो गई, इन्वेस्टमेंट और तेज हो गई, नेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। फिर क्या हुआ? कोविड आ गया, आउटपुट की रिक्वायरमेंट गिर गई, -100 हो गई। तो इसके लिए अब मैं कहूंगा कैपिटल को पुल आउट करो, $200 से अपनी कुछ वेयर हाउसेज बंद करो, 200 बिलियन का कैपिटल वापस से पुल आउट करो फ्रॉम द मार्केट। So according to MEC theory, based on the capital to output ratio, we are assuming this does not change. The net investment is dependent on the change in the national income. जितना national income अगर constant रहेगा ना, let's suppose ये 300 से 300 ही रहता, तो मुझे नेट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज मेरी एग्जिस्टिंग कैपिटल वुड हैव जनरेटेड दैट मच फॉर मी। ऑलराइट, आई होप दैट मेक्स सेंस। थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो मेक श्योर यू गो इनटू द इन्वेस्टमेंट के लेक्चर्स, प्रॉब्ली 1 या 2 लेक्चर्स होंगे, एक एमईसी पे और एक एक्सेलरेटर पे। गो ओवर दैट एंड सी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर ऐसे आता है तो ऐसे 12 मार्क का इसके ऊपर आ सकता है, 13 मार्क का भी आ सकता है, but the question is going to be about both investment होती क्या है, MEC theory की पूरी डिटेल, उसकी limitations, और accelerator theory की डिटेल्स और उसकी limitations. It's there in the notes, you can go over it, उसको तुम्हें एक आंसर में structure करना है, ठीक है? So I'll stop here. Tomorrow I'm going to work on the same, लेकिन इस मॉडल को हम थोड़ा सा अब equilibrium की तरफ लेके जाएंगे, and we're going to solve some of the MCQs
and hopefully begin the multiplier. कल ही कोशिश करके कल ही शुरू कर देंगे उसको. Alright? Any questions? Do ask me.